all start earning properly. Practice management का ethics का switch off कर दो. Finance now. Let's come to numbers. It is difficult, I know, but sometimes to switch between different things. But as I told you, as we go at the end, you will find all the puzzles falling into the jigsaw properly. So we can start our career either by assisting others, or maybe we can start our own clinic. But because of our profession, we have late marriage, late kids, and that does affect our, say, our financial practices. So we do slow off. As I told you, we have a life of 15 to 20 years of active practice where we can command over that. We can continue even after that age, but then our conditions of work, the competition don't remain the same. We should be having plenty of disposable income. We should identify our risk levels and we always aim for a stable income, and so that we minimize our tax deductions. Because of being doctors, we have cracked the pre-medical test. We are deemed to be intelligent. So people expect us that we are financially also intelligent. We don't make bad decisions. We make blunders in finance. All of us. Even I used to. So credit cards are in fashion. We all fall prey to such lures. High EMIs during student loans. All do add up to our liabilities. So tax is one of the grey areas where we all try to save tax. Not all of us, but all of India. All of us want to save tax, not by disclosing not our true income. So we are very happy to see our gross figures. Failing to realize that after tax, income won't be that rosy, where we can say command a good life. So as I said, active good practice life of 15 to 20 years, a perfect saving ratio should be 30 to 35. If we plan to even partially retire at 55 or are forced due to our neck or back. So it is one of our esteemed professions, and we have to understand, if we don't follow the rules, we have made certain rules. We diagnose, understand, and then prescribe a proper treatment plan. Unfortunately, when we resort to finance, we don't do such things. Mostly हम लोग पेशेंट को बोलते हैं यार तू करवा दे मेरा काम. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हम उन चीज़ों का फायदा भी उठाते हैं. They sell us certain things in the garb of certain investments which are not known to give us benefits. So we have fresher dentists also. When they gang up against us, then the practice cools down and we have to face more of competition. So we have to list out the problems which we face, especially the newcomers who have to set up their own practice. We have to take care of the finance part, investment part, and then many other things which have to be taken into account. And unless we are a financial expert, we cannot do that. Then, as I discussed in the morning, we have to update ourselves also. We have to buy new equipment every now and then. That is where I want all of you to make sound decisions. You should be knowing finance so much, or that much at least, where you can make good decisions, whether that thing falls into your ambit of giving you a good return in all aspects, in terms of patients, in terms of its depreciation also, in terms of its life, or in terms of cost benefit ratio also. So we all see that all investments are mostly done by us in March, the fag end of the year. We do not believe in active investments at the right time, and just to save the right amount of, say, tax, we do the savings only in that period. So we slog day in and day out, and we don't know even how to make our money grow from our own money. That is for us to know. So what are the biggest tax mistakes we usually make? But before that, I'll tell you a few things, journal things. Most of you must be knowing it. Just want to clear the concept. What is a financial year? बैंक को भी पता आपने तुड़वानी है. उसने प्रोजेक्शन सिस्टम के बेस से 1,20,000 के ऊपर 10% का
9 मंथ्स का, रफली 9500 की बजाय उसने 9 मंथ्स का नहीं कैलकुलेट करा, उसने 1 ईयर का कर दिया। 1 ईयर का कितना हुआ रफली 12000 से ऊपर, तो इसमें कंपाउंडिंग भी हुई 10% के ऊपर, कुछ समझ लो 20-25 पैसे, अराउंड 10.25 10.28 के आसपास वो पड़े। सो दैट वुड मीन कि 12000 या 13000 के आसपास अमाउंट पड़ा। तो उसके बेस पे उसने बोला कि आपका 13000 पे 1300 टैक्स बने। बैंक्स का एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, दे डिडक्ट टैक्स in the range of 10%, considering all of us have PAN linked now. PAN नहीं लिंक होता था तो 20% लगता था, उसके और पंगे थे, वो आप क्लेम भी नहीं कर सकते कहीं से, बिकॉज वो आपके कुंडली में आएगा। कुंडली क्या है वो आगे बताऊंगा। तो क्लेम करना है आपने, वो आपको वो चाहिए। अब बैंक ने प्रोजेक्शन सिस्टम के बेस पे काट लिया, आपकी वैसे इनकम 2.5 लाख से कम है, अब आपको वो रिफंड लेना है कि मेरा तो गलत काटा, मेरी तो छुड़वानी थी, और उसको क्लेम करने के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, आपके फॉरेन एसेट्स हैं, आप कोई वीज़ा लोन एप्लीकेशन वाले भी रिटर्न मांगते हैं आजकल, तो अगर आपकी कोई कंपनी और फर्म है तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो इनकम के सोर्सेज क्या क्या है? रेंटल इनकम होती है लोगों की सैलरी प्रोफेशन के बाद, पेंशन के अलावा, तो पेंशन तो नहीं आती होगी आपको, तो अभी आएगी कुछ साल बाद। तो कैपिटल गेन्स है आपके म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं, ऑल दीज फॉल अंडर द इनकम सोर्सेज। बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, ये और 5 लाख वालों को 5% देना, 2.5 से 5 वालों को, 5 से 10 वालों को 20% देना, 10 से ऊपर वालों को 30% देना। दिस इज द चार्ट। अब दिस इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव सिस्टम का मतलब है कि 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 से 5% हुआ तो आपका बना 12,500। ठीक है, अब 5 से 10 वाले को ये नहीं है कि उसको 7.5 के ऊपर 20% देना, उसको इतने स्लैब का 5% देना है, प्लस ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इसका 20% देना। 5 to 10 का 20% मतलब 1 लाख। ठीक है, अब जो 10 लाख से ऊपर उसको भी इसी तरह प्रोजेक्शन बेस देना है, जितना अमाउंट मान लो 12 लाख है तो 2 लाख डिफरेंस हुआ, 2 लाख का मतलब 6,000 टैक्स, सॉरी 60,000 टैक्स, 60,000, तो वो 60,000 आपको टैक्स देना है। 60 प्लस 1 लाख प्लस 12,000, 1,72,500 टैक्स देना है। ठीक है, तो दिस इज द फिनोमेनन ऑफ टैक्स। 2.5 से 5 तक आपको 5% देना है, 2.5 डिफरेंस 2.5 तक कुछ नहीं है, तो 2.5 के ऊपर 5% है 12,500, 25 से 5 125 बटा 100 12,500। ठीक है, तो ये 5 से 10 वाले का 20%, उसको इस 7.5 के ऊपर जो डिफरेंस है 2.5 से ऊपर 7.5 लाख है, उसके ऊपर 20% नहीं है, इस स्लैब का 5% और इसका डिफरेंस है उस पर 20%। ये तो आगे 12,500 ऊपर का ऐसे एज इट इज, नीचे का 5 लाख के ऊपर 20%, 5 लाख का 20% इज 1 लाख। ठीक है, उसको 1,12,500 देना और आपकी इनकम 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख से ऊपर वाले को इतना अमाउंट प्लस 30% ऑफ जितनी भी आपके ऊपर है। अगले साइड में वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कहीं को लगता है कि 15 लाख मेरी अगर इनकम है तो मेरे को 30% टैक्स देना है, क्योंकि मैं 10 से ऊपर फॉल करता हूँ, तो बोला मेरा 4.5 लाख टैक्स है। नो, उसका टैक्स बनेगा 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख का डिफरेंस जो है वो 2 लाख, सॉरी 1.5 लाख का डिफरेंस है 2,62,000 टोटल इसका। सॉरी, ये जो 10 से 5 उसका 30% मींस 1.5 लाख, 30 into 5 5 लाख से 30 1.5 लाख, और जो बाकी ये था पिछला जो हमने ये 1,12,500। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। अब ये इस वक्त 2017, 18 और 18, 19 के लिए ये स्लैब फिलहाल, तो बाकी देयर आर 2 मोर स्लैब फॉर 60 एंड 80, उनको वही टैक्स है लेकिन उनको 3 लाख की एग्जम्पशन है सीनियर सिटीजन्स को, सुपर सीनियर को 5 लाख तक एग्जम्पशन है। ठीक है, अब सेस आगे 3% होता था, वो इस साल से अगले फाइनेंशियल में हम लोग 4% रहेंगे। सेस इज बेसिकली जितना आपका टैक्स बना उसके ऊपर पहले 3% था, 4% प्लस। सो सैलरी के लिए कुछ डेडलाइंस हैं, दे हैव टू सबमिट देयर इन्वेस्टमेंट प्रूफ बाय 31st of January। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका एम्प्लॉयर उनका टीडीएस काट लेता है। ठीक है, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ दिखाते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट, वी डिस्कस दैट। सो डेडलाइन क्या है उसकी, वैसे इन्वेस्टमेंट करने की 31st March। So if we have some staffs, 2 or 3 staffs,
So we have to show the salary which we are given to the staff. So what should we do for that? To income tax. I didn't get your question. So if we are giving a salary to our staffs, suppose we have 4 staffs, and so we have to show our salary slip to income tax, and it means expenses. So what we should do? I'll come to that. Hold on a question for some time. We'll get the answers in the coming slides. So एक ITR वेरिफिकेशन फॉर्म, दिस इज नॉट ITR 5, दिस इज ITR V, ITR वेरिफिकेशन फॉर्म बोलते हैं. दिस जब हमने रिटर्न फाइल कर दी उसके तकरीबन 4 महीने के अंदर अंदर हमें ITR V CPC बैंगलोर को भेजना होता है, IT डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में. अब ये चीज़ बड़ी सिंप्लीफाई हो गई है. यू कैन डू वाया नेट बैंकिंग आल्सो, वाया आधार लिंकेज आल्सो. EBC कोड आया था, यू कैन इमीडिएटली ई फाइल और ई वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न. आपका फाइलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना आपकी IT रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी. दैट इज फॉर क्लियर. और अगर आप 120 दिन के अंदर नहीं भी भेजते हैं तो आपको फिर दोबारा फाइल करनी पड़ेगी विद पेनल्टी. सो सिंगल पेज फॉर्म होता है. अब इसकी जरूरत नहीं है पोस्टल की, क्योंकि अब मैनुअली हम लोग जरूरत नहीं है, डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं. तो एक चालान 280 आता है जिससे हम लोग अपना ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं. और हर काम ऑनलाइन होता है. यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक फॉर एवरी पर्पस. अब ये गवर्नमेंट का onlineservices.in का वेबसाइट है. दिस इज द वेबसाइट लुक ओनली, जहाँ पे आप ये अलग अलग कार्य, यहाँ पे TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी है, सारे तरह के आप चालान भर के अपने वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम भी है, अपना वो कर सकते हैं. तो 280 चालान इसके नीचे है लास्ट में, जहाँ पे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स. ये सारे तरह के चालान, कुछ भी आप करेंगे क्लिक, वहाँ से आप थ्रू नेट बैंकिंग या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं. तो TDS क्या होता है? TDS जो होता है दैट इंश्योर्स अ स्टेडी फ्लो ऑफ टैक्स. गवर्नमेंट को सारा साल कहीं ना कहीं से पैसे आते हैं. एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज का काटते रहते हैं, तो गवर्नमेंट को जमा करते रहते हैं. तो 30,000 तक का एक नॉर्म है, 10 से 15% कटता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कटता है. तो ये जो कटिंग्स होती हैं TDS की, ये सब अंदाजे से होती है, इन एवरेज फिगर. इसको एंड में जाके गवर्नमेंट मर्ज करे कि आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनी है वो कितनी है और आपका एक्चुअल टैक्स कितना है और आपने पे कितना किया है. डिफरेंस होता है, अगर आपकी तरफ होता तो वो दे देते हैं बाय रिफंड, नहीं होता तो आपको देना पड़ता है थ्रू एक्स्ट्रा इनकम और थ्रू एक्स्ट्रा टैक्स. समझे? तो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ से एवरेज calculation by the government to calculate certain taxes so that it has a steady flow of income. उनको भी साल के एंड में पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो सबका करें. So basically it receives the net amount after the deductions and it is adjusted against the final tax due whatever it is deposited. अगर ज़्यादा दे दिया तो रिफंड मिल जाता है. It is very easy. आजकल रिफंड तो यूजुअली 15-20 दिन के अंदर आ जाते हैं. मेरा भी रिफंड था, अपना मेरा 20 अगस्त को रिफंड आ गया. मैंने 25 जुलाई को भरा था, 31 लास्ट डेट थी, उन्होंने एक्सटेंड भी कर दी थी. मेरा 20 जुलाई को रिफंड आ गया. तो राजेश जी को छोड़ के बाकी सब आंसर करेंगे. व्हाट इज एडवांस टैक्स? सर को मालूम है एडवांस टैक्स क्या होता है? डेफिनेशन तो ये लिखी है, होता क्या है, किसको देना एडवांस टैक्स? So we have to pay to the. नहीं, आप नहीं आंसर करेंगे, आपको नहीं पता. सॉरी. एडवांस टैक्स किसको देना होता? TDS हो गया, वो कट गया बैंक की एफडी पे, सैलरी पे. सेल्फ एम्प्लॉयड हो आपको तो सैलरी मिलनी नहीं, मान लो आपके लिए नहीं कैसे सोर्स ऑफ इनकम, आपको TDS कटना नहीं. चलो अगर एफडी तो बैंक काट लेगा, तो वो आपकी इनकम पे थोड़ा काटा, तो उसने आपकी एक्स्ट्रा इनकम पे काटा. एडवांस टैक्स किसको दें बताओ? एनीवन? नहीं सर, एवरीबॉडी डजंट हैव टू पे. अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा. 10,000 का मतलब क्या है? अभी हमने एक स्लैब डिस्कस करी थी 2.5 से 5 लाख नहीं, 2.5 से 5 लाख की स्लैब देखी थी, जिसकी अगर 5 लाख तक इनकम है तो उसको 12,500 देना. तो मतलब अगर आपको एडवांस टैक्स के बारे में मालूम है तो मतलब आपकी सालाना इनकम 4 लाख है या 4.5 लाख है. जो यहाँ पे बैठे हैं सारे 4.5 लाख होगी तब भी 10,000 बनता है.
2.5 इंटू 7.5 सीधा 10,000 बनता। अभी मैंने इंटरेस्ट इनकम तो जोड़ी नहीं, तो मतलब आपकी 4.5 लाख इनकम है, मतलब आपकी 35,000 रुपये सैलरी है या 35,000 इनकम है, ग्रॉस और नेट व्हाटएवर यू कैन से, नहीं है ना। फिर अगर आपको एडवांस टैक्स के बारे में पता नहीं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका सीए करता जो भी करता आपको पता नहीं, तो या आप टैक्स चोरी करते हो ठीक है ना। इट इज इजियर सर, एडवांस टैक्स हैज टू बी पेड, इट हैज टू बी पेड इन सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स। इसकी ड्यू डेट्स होती हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15% देना है, 30% और देना है, 30% और देना है और 25%। पहली और लास्ट 15 और 25%, बीच वाले 30-30% मोटा मोटा। So we have to pay accordingly. This is again paid on the basis of average, जैसे हमने वो किया। एंड में जो कैलकुलेशन होगी वो एडजस्ट होगी। सरकार आपके एक्स्ट्रा पैसे पे ब्याज ही देती है, आपने जो कम दिया उस पर 234C लगा के आपसे एक्स्ट्रा ले जरूर लेती है कि आपने इतना एडवांस टैक्स कम किया था, मेरा प्रोपोर्शन से थोड़ा सा फर्क था, 34 रुपये उन्होंने टैक्स लगा दिया उसको 234C का। सर वापस एक्सप्लेन करेंगे एडवांस? सॉरी, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपका अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से, आप कितना टैक्स देते हैं पता है आपको? मुझे पता ही नहीं। ये या आपको पता नहीं है, आप चेक कर रहे हैं, दो ही रीजंस होते हैं। तो द थिंग इज, देखो डेंटिस्ट वैसे ही बहुत बदनाम है कि लूटते बहुत है, एक जनरल परसेप्शन है ना पब्लिक की, लेमैन की, बहुत पैसे लेते हैं डेंटिस्ट। वो सुबह ने मुंह में वॉश बेसिन लगाने के 2,000-3,000 उसमें एक इतने से क्राउन का 3-5 हज़ार लेते हैं। पीपल हैव दिस परसेप्शन कि पता नहीं अपनी जेब में कितना डालते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हम बदनाम, और हम लोग जब दिखाते हैं अपनी 40,000 इनकम, 35,000 इनकम, हमारा टैक्स इतना, मैं अपने कलीग्स, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जानता हूँ, बम्बार्डिंग प्रैक्टिस 25,000-3,000 टैक्स देते हैं सर। मैं टोटल इनकम कितनी शो करी आपको नहीं मैटर करूँ, 3 लाख 3.25 लाख। मैं कहा शर्म नहीं आती इतनी दिखाते। तो हमारे साथ एक दिन रेस्टोरेंट चला गया, कहता आज 3-4 फ्रेंड्स थे फैमिलीज के साथ, आज मैं बिल दूंगा। बिल आ गया 3500 रुपये। तो उसने जैसे एक कॉमन फ्रेंड थे, यार बड़ा बिल निकाला इसने, आज बिल दे दिया। मैं कहना इसकी पार्टी भी ड्यू थी, चलो इसने दे दिया। मैं एक बड़े हैरानी की बात बताऊँ, इतने टैक्स देते ना उससे ज़्यादा का बिल था इसका। सेम है। सो अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा होता है, you have to pay in installments to government. This applies to self-employed professionals like us. So every year you have to pay? Every year, every quarter. Every quarter. ये year का नहीं है, ये एक साल की चार है। ये दूसरी निकल गई अभी डेट, अभी निकली 15 दिन पहले। अब कैसे करना है आपने, अब फिर आ जाता है, हम वापस कहाँ आएंगे, सुबह जो डिस्कस किया अपने रिकॉर्ड पे। यू शुड नो योर नंबर्स। अगर आपको अपने नंबर्स पता है, आप कितनी आपको प्रति माह तक आमदनी होने वाली है, आप उसके लिए बेंचमार्क या रेफरेंस पॉइंट क्या रखोगे, पिछला साल 20,000 इतना था तो ले देंगे 10% ऊपर नीचे, 15% ऊपर नीचे, अनलेस सम अदर डिफरेंस इज देयर। सो आपने उसको कैलकुलेट करना है, उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो आपने जैसे बोले, उसके बाद डिडक्शन लगानी है, वो करनी है। अभी भी आपके सवाल का आंसर पूरा नहीं मिलेगा थोड़ी देर में, तो उसके बाद आपने उसको एडवांस टैक्स को कैलकुलेट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंटेन करना है, अपने इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये चीज ज्यादातर लोग खुद नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सीए की जरूरत होगी। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये खुद कर सकते हैं। राजेश जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी बैलेंस शीट खुद बनाई, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर किसी को नहीं आता है वो खुद बनाएगा, उसको टाइम लगेगा सीखने में। ये कहते हैं कि मेरे को खुद हैरान लगे, मेरा सीए मेरे पे हैरान हो गया कैसे बना ली, हिज एफर्ट एंड हिज डेडिकेशन ये बना पाए। तो इट इज अ थिंग व्हिच वी ऑल कैन डू एंड वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। सो दीस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। सो इनकम जो मैंने आपको 5 हेड बताए थे, रेंटल इनकम, ये इनकम, सारी इनकम ऐड करके टोटल ग्रॉस इनकम बनानी है। सेविंग इंटरेस्ट से जो ब्याज आता है ना, इवन दैट इज योर इनकम। कितने अकाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, हमको पता ही नहीं होता, हम डालते नहीं कभी। आधार पैन लिंकेज के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं, तो लिंक हो गया, गवर्नमेंट नोज आपका इंटरेस्ट कितना है,
वो कुंडली वाली चीज मैंने अभी बोली थी ना, वो कुंडली में वो भी आना शुरू हो जाएगा शायद थोड़ी देर में। सो डिडक्शंस क्लेम करने, डिडक्शंस क्या होती हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना। अब इन्वेस्टमेंट्स जो हम करते हैं जैसे पीपीएफ कर दिया, एनएसए कर लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज, इंश्योरेंस, ये सब चीजें, ये दीज ऑल आर अलाउड एज डिडक्शंस टू अस। तो एक पोर्शन होता है डेप्रिसिएशन। जैसे आपने कोई बड़ी मशीनरी खरीदी, उसको आप उसका एक्सपेंस नहीं डालोगे कि मैं इसको एक्सपेंसेस में माइनस करूँ। इक्विपमेंट का हमेशा आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसका आपको ये नहीं कि आपने 5 लाख का कुछ गैजेट खरीदा है, सपोज आपने से इम्प्लांट का किट खरीदी आपने, या से माइक्रोस्कोप खरीदा 5 लाख का, वो आप 5 लाख का 5 लाख नहीं माइनस करोगे एक्सपेंस में से, उसका कुछ पोर्शन माइनस करोगे, 10%, 15%, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, दिस इज टू बी चार्ज एवरी ईयर, नोन एज डेप्रिसिएशन। दिस इज बेसिकली द WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। उस चीज की एक लाइफ होती है, उसको धीरे धीरे हमने कम करना। डिफरेंट स्लैब्स होते हैं 5, 10, 15, 60। तो यूजली डेंटल इक्विपमेंट्स 15% की कैटेगरी में, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली डेंटल इक्विपमेंट्स फॉल इन दी कैटेगरी ऑफ 15%। उन पर रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे। फर्नीचर फिटिंग पर 10% मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग जो होती है उसमें वो फर्नीचर में आती है, लैंड एंड बिल्डिंग में 5%, कंप्यूटर्स पे 60%। ठीक है, सो अब डेप्रिसिएशन के लिए बड़ा सिंपल फंडा है। अगर लेस देन 180 डेज रिमेनिंग है, जैसे वो 2 या 3 अक्टूबर को हमारा 30 सितंबर को साल का मिड होता है, लेकिन 185 दिन नहीं होते, 183 दिन होते हैं। ऐड कर लो आप, मई, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के 31 दिन है, बाकी 3 महीने के 30। तो 183 डेज हुए हैं। आज सितंबर 30 है, 183 हुए। तो 185 अगर 3 अक्टूबर के बाद अगर खरीदी है तो मींस 186 डेज हो जाएंगे हमारे, तो 179 रिमेनिंग होगी, उसकी आपको हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगी। अब इसमें एक और बड़ा क्लॉज है, द इक्विपमेंट बॉट शुड बी रेडी टू यूज ऑन दिस डेट। हालांकि ये लोग हम फॉलो नहीं करते, बट इक्विपमेंट हैज टू बी इन रनिंग कंडीशन व्हेन इट हैज। ये नहीं कि आपने 3 रात को खरीदा, डेप्रिसिएशन तो डाल देते लोग पूरी, मतलब चलो सेव दैट पार्ट, बट अगर उसको आपने रेडी टू यूज किया है, दैट इज द क्लॉज। तो ना कोई पूछता ना कोई देखता, सो वी कंसीडर दैट इनटू फुल पार्ट ओनली। अगर लीप ईयर है तो मे बी एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा 179 डेज रिमेनिंग के लिए। लेस देन 180 डेज का होता है 365 में से। सो अगर आपने 31 मार्च को भी इक्विपमेंट खरीदा है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, तब भी आपको आधे साल की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन इज काउंटेड इन योर एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस वाला फंडा गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया हमारे देशों के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर हम फॉलो करते हैं वो भी सिखाऊंगा। सो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 तरह के होते हैं, कैश बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस। अब कैश बेसिस में मोस्ट ऑफ द सीएस वर्क दैट वे। आपने चेक दे दिया लैब को 20 मार्च को, या डीलर को दे दिया, उसने लगाया 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को पेमेंट गई। अब आप किस में डालोगे, इस साल में कि अगले साल में? कैश बेसिस में हम उसको डालेंगे अगले साल में। मर्केंटाइल बेसिस में हम डालेंगे एज एंड व्हेन द एक्सपेंस अराइजेस। जिस डेट का बिल है उसी डेट में अगर हमने पेमेंट कर दिया, हम अपने सिस्टम में फॉलो कर लेंगे। बट देन दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फॉलो थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये सीएस के लिए होता है, बट द मेन सिस्टम इज द कैश बेसिस। हम लोग कैश बेसिस ज्यादा फॉलो करते हैं। बिल हमारा किस डेट का भी हो, हम लोग जब हमारा चेक क्लियर हो, हम लोग उसमें डालते हैं, या उसको बोल दो अगर आपको चाहिए भाई 31 मार्च से पहले अपना चेक लगा ले, मेरे को अपने इस साल के अकाउंट में डाल। अब ऑडिट किसके लिए जरूरी है? ये बेसिकली ऑडिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपकी रिसीट्स जो है 50 लाख से ऊपर है, मींस 4,44,000 से ज्यादा, 4,16,000 से ज्यादा कमाते हो आप पर मंथ, और अगर आपका बिजनेस लर्नर होगा 2 करोड़ से ज्यादा, और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ये अगर आप 20,000 से कम कमाते हो, उन तीनों केसेस में आपको ऑडिट की जरूरत है। So an investment in knowledge always pays the best interest. अब आइए आपकी जन्म कुंडली। एक पंडित ने बनाई होगी जन्म से, एक इनकम टैक्स वाले बनाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं है ये ऐसी जन्म कुंडली है। 99% लोगों को, प्रोफेशनल्स को कह रहा हूँ, नॉट सीएस बट प्रोफेशनल लाइक अस, 99% लोगों को 26 एएस के बारे में पता ही नहीं होता। 26 एएस क्या है? इनडायरेक्टली
आपके पैन की सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, जो आपने कांड किए हैं पूरे साल में पैसे के साथ दे आर ऑल रिकॉर्डेड इन दिस। इसमें आपका टीडीएस, जो आपने टैक्स भरा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, सब कुछ आएगा। ठीक है, अब ये कहां से होगा? आप में से कौन रिटर्न अपनी ऑनलाइन भरता है? ऑनलाइन भरते हो? 26 से इस पे गए बोलिए, खोला कभी? नहीं खोला? ये इसी से खुलेगा। इनकम टैक्स की फाइलिंग है आपका, लॉगिन बना हुआ है, इस पे आपके पैन से लॉगिन होता है। पैन से लॉगिन होता है, अपना पासवर्ड डालो, एक वो नीचे वेरिफिकेशन कोड आता है वो डालो, आपको खुल जाएगा। वो कहां से खुलना 26 से आपको बता दूं। मैं हर क्लिक को एडवाइस करता हूं, हर हफ्ते अपनी एक बार कुंडली चेक करो। एक ऐसी कुंडली है, खुद चेक कर सकते हो और हर हफ्ते चेक कर सकते हो, और करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? टैक्स जो पे किया आपने, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कुछ भी आपका रिफंड आया है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, वो सब आएगा इसमें। अब ये ट्रेसिस वेबसाइट है, ये बेसिकली 26 ES ये है। सर एक स्लाइड पीछे लेंगे। ओके, ये 26 ES है। ये लिंक उसी से के थ्रू खुलता है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग के थ्रू। इसमें आप अपना असेसमेंट ईयर, जैसे अभी असेसमेंट ईयर आप अगले साल के, इस साल के जो 6 महीने में आपने कुछ कार्यक्रम अगर किए होंगे वो सारे इसमें आ गए होंगे। वैसे तो एक क्वार्टर का अपलोड हुआ होगा, इस क्वार्टर का अपलोड अगले महीने तक करेंगे बैंक वाले या कोई और जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने आपका रिकॉर्ड रखा होगा। तो यहाँ पे आपका नाम, पैन सारा डाल जाएगा, उसके नीचे सारा जाएगा। अब इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए से लेके पार्ट जी तक, वो बात नहीं, अलग इसके अलग पार्ट्स आएंगे आपको। ठीक है, ये ए से लेके जी तक होते हैं। अब ये पार्ट ए, इसमें जहां जहां आपका टीडीएस कटा है तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपकी सैलरी पे, इंटरेस्ट इनकम पे, प्राइस विनिंग पे जो जो कटा होगा, जितना जितना कटा होगा, सारी कहानी है। Of any bank details will be given, means cooperative bank, nationalized bank, all bank detail will be given. ये सेविंग एंड ट्रस्ट में नहीं आता, एफडी का सवाल आता है। No, on saving bank, other different bank. सेविंग का हो जाएगा मॉडिफाई बहुत जल्दी, अभी आता नहीं है पर आएगा। पर अब बैंक्स ने जहां पे आपका टीडीएस नहीं भी कटा है वो भी अपलोड करना शुरू कर दिया। एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई, 3 बैंकों ने कर दिया है। अगर आप लोगों ने 9000 दिया है, इस पे टीडीएस 0 है, वो आ जाता है। बहुत बैंक, अब वो पीएनबी के स्कैम के बाद ना, पीएनबी ने सबसे पहले शुरू किया था, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सच थिंग्स कि ये चीजें भी अपलोड करो, चाहे आपका टैक्स 0 वहां पे इस कॉलम में आपका डिडक्टेड में 0 दिखा दे। मेरा अपना अपलोड हुआ है, तो हम लोग तो डालते हैं, उसको दिक्कत नहीं, पर मेरा टीडीएस नहीं बनता था, वो अपलोड हुआ है। सेविंग्स का आएगा, जो मेरी इंट्यूशन शायद अगले साल में आ जाए, शायद। हां जी सर, फॉर कंसल्टेंट्स डू वी नीड टू कट द टीडीएस एट आवर बिलिंग एंड देन हाउ डू वी पे फॉर इट? 30,000 से ऊपर देते हो तो यस, बट नॉर्मली व्हेन एनी ऑर्थोडोंटिस्ट कम्स, वो तो साल में तो 30,000 के ऊपर ही जाएगा उसका। जाता है, फिर आपको अगर काटोगे तो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा। बट फॉर दैट डू वी नीड एनी स्पेशल दिस थिंग? वही आपको दिखा देना मैंने। चलान कंसल्टेंट का पैन नंबर चाहिए, आपको डिपॉजिट भी करना है गवर्नमेंट का, जो आप काटोगे वो काट के आप अपने साथ ही रख सकते नहीं, सीरियसली दैट इज द पनिशमेंट ऑफ क्राइम, ऑफेंस है वो। ठीक है, ये नहीं कि उसको काट लो, या उसका बेस्ट तरीका है अगर आप नहीं काटते हो, कोई ऑफेंस नहीं है वो उस तरह, बट उसको आप पक्के में पेमेंट करो। अगर आपने पक्के में सारी डाली हुई है तो पक्के में चेक में, अगर मैं खुद ही डाल दूं उसका कैसे काटेंगे? आपने उतनी इनकम डाली है जितनी आपने उसको दिखाई है, ये आता है डिफरेंस। जस्ट एज एग्जांपल, अगर आपने खुद वो इनकम डाली है देन यू शुड बी डूइंग इट। 15G ले नहीं सकते ना उसको, क्योंकि 15G उसकी इनकम तो 2.5 लाख से ऊपर है, वो टोटल इनकम पे लेगा ना 15G। अब पार्ट ए का A1 भी है, इसमें 15G है, जो भी सर्टेन क्वेश्चन पूछे। अब 15G 15H क्या है? 15G है जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है और उसका एफडी पे ब्याज, जैसे मैंने एग्जांपल दी 12 लाख वाली, और 12,000 की एफडी आपने कराई, 1,20,000 की एफडी कराई 9 महीने की, मान लो आपने वो साल के लिए कराई, आपका इंटरेस्ट बनता है मोटा मोटा 12-13,000 रुपए। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, इंटरेस्ट इनकम डाल के भी, तो बैंक उसके आपका टीडीएस ना काटे। उस केस में आपको बैंक को 15G फॉर्म देना, 15G फॉर्म दोगे, वो इसमें वो बैंक जब लेगा आपसे वो 3 कॉपीज लेगा।
एक अपने पास रखेगा, एक हेड ऑफिस भेजेगा, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। वो ट्रिप्लीकेट फॉर्म जो होता है उसकी एंट्री साथ में यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप वो कहते हैं ना शाना बनने की कोशिश करोगे तो यहाँ पकड़े जाएंगे। नीचे आप कॉलम्स में आपका टीडीएस आएगा, आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा। एक तरफ आप टैक्स दे रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मैं तो 15 जी मैं तो टैक्स देता नहीं है कि नहीं कुंडली। सो ये 15H जो है सेम फॉर्म है, सिर्फ सीनियर सिटीजन उनको 60 इयर्स के ऊपर वाले को 15H देना, आपको 15G। सो पार्ट A2 है, अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये सेलर ने करना होता है, कोई प्रॉपर्टी बेची है। अब सुबह बात कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट नहीं करो, वो भी यहाँ पे आ जाए। कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसकी यहाँ पे टीडीएस कटेगा और उसका आपको यहाँ पे बिना आपको बताए यहाँ पे ब्यौरा, क्योंकि जो भी काटेगा वो जमा भी करवाएगा ना। वो हमने अभी देखा था ना वो ऑनलाइन सर्विसेज वाला लाल वाला फॉर्म चलान की बेटी के साथ, उसमें चलाने के ये भी था। तो इट हैज टू बी डिपॉजिटेड ऑन दैट चलान टू द गवर्नमेंट। या हां 50 lakhs above 50 lakhs। तो अब ये टैक्स कलेक्शन के लिए जो है इट हैज टू बी बाय द सेलर। ये पार्ट बी है। पार्ट सी है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस और टीसीएस। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार आपको रिफंड इशू कर देता है, आपसे ज्यादा टैक्स ले लिया, एडवांस टैक्स आपने ज्यादा ले दिया, आपको भगवान ने अगर उतनी इनकम नहीं हुई, आपने अंदाजे से पिछले साल के डाल दी, आप बीमार हो गए, आपको बाहर जाना पड़ गया, उस महीने में आपकी इनकम नहीं हुई, क्लिनिक बंद रहा, तो आपने अगर एडवांस टैक्स ज्यादा दे दिया या आपके बैंक ने आपका टीडीएस ज्यादा काट लिया, तो दैट इज एडजस्टेड एंड यू आर पेड बैक द रिफंड। तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं देते वो लोग इसके ऊपर, अदरवाइज दे पे बैक द फुल रिफंड। उस मामले में ऑनेस्ट तो जो कोई AIR ट्रांजैक्शंस किए हैं, एनीबॉडी कैन टेल AIR व्हाट इज AIR? एनुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन रिटर्न। जो भी आप जैसे है, मैंने चुप के म्यूचुअल फंड खरीद लिए, मैंने किसी को बताया नहीं, टोटली आपको पता है जिससे हमने खरीदे उसने यहाँ एंट्री डाल दी। सो इट इज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रिपोर्ट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। अब ये बायर ऑफ द प्रॉपर्टी को भी टैक्स डिडक्टेड डालना है, ना बायर बचेगा ना सेलर बचा। व्हाइट और ब्लैक का चक्कर तो फंड की बंदा आने वाले टाइम पे ये टीडीएस जो भी कटता है उसकी आय थी डिटेल। अब फॉर्म 26A देखना कैसे? एक तो अलग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करना बेटर रहता है, डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो इज योर ओपनिंग पासवर्ड। सो ये इनकम टैक्स का वेबसाइट है, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आप लॉगिन करते हैं, अगर अपनी रिटर्न भरते हैं, टैक्स भरते हैं, नहीं भी भरते, आपका सीए भरता है तो आपका लॉगिन बनाओ। क्यों? जो सीए होते हैं वो आपकी रिटर्न फाइल करने से पहले विदाउट योर नॉलेज वो आपके 26A जरूर चेक करते हैं, उनको एंट्रीज कोरिलेट करनी होती है। आपने उधर से आपकी इंटरेस्ट नहीं, आप कौन सा सब चीजें बताते हो अपने सीए को, ठीक है ना। हमने एक्सपेंसेस के लिए उसको रजिस्टर दे दिया, ठीक है ना, इनकम लिख के दे दी, सेविंग बैंक की एक आधी कॉपी दे दी, सारे इंटरेस्ट की दी नहीं, एफडी-आरडी बताई नहीं हमने। उसमें तो देखना है, यहाँ पे किसी एफडी-आरडी का इंटरेस्ट आ गया कल को, तो उसमें अगर ऑडिट वाली तो और पंगे वाला काम है। तो वो इसको क्रॉस चेक हमेशा करें। बहुत सारे लोगों का ये पासवर्ड जो होता है दैट इज विद देयर सीए ओनली, नहीं है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम योर सीए, मतलब जो आप में से रिटर्न फाइल करता है उसका ये बनाओ, वो पासवर्ड आपके पास है नहीं है दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं है तो आप बनाइए, अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं, रिटर्न आज तक नहीं फाइल किए तो यहाँ से बनाइए। ये यूजर आईडी वगैरह, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और ये वेरिफिकेशन कोड डाला एंड देन अब ये यहाँ पे जैसे हमने ये खोला, अंदर पहुंच गए लॉगिन करके, ये माय अकाउंट में जाइए और ये सबसे पहले नंबर पे वी फॉर्म 26A इसको क्लिक कीजिए। ये किया, ये लिखा आ जाएगा यू विल बी रीडायरेक्टेड। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लीजिए, ये कोई फिशिंग साइट नहीं है तो अलग से यू विल गो टू अ विंडो बाय ट्रेसेस ओनली। तो यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में ट्रेसेस का दिखाया था, ये आपको एग्री करना पड़ता है प्रोसीड करने के लिए, फिर वो डिटेल सारी आएगी। 26A में सारी डिटेल जो मैंने ए से लेके जी तक आपको बताई है, सब डिटेल्स होती है। तो और ये आपकी सारी ऑनलाइन पढ़ी और बहुत सारी आपकी नॉलेज के बिना पढ़ी। तो इसमें असेसमेंट ये डाल, अब ये इसने को वेरिफिकेशन कोड का काम खत्म हो गया, अब कोड नहीं लगता वहाँ पे इसमें ट्रेसेस में।
तो आप अपना इसको व्यू कर सकते हैं। अब फॉर्म 16 क्या है? ये सैलरी वाला भी ये है। फॉर्म 16 बेसिकली एक फॉर्म है जो सैलरी वालों को मिलता है, जिसमें उनका सारे साल का टैक्स, सैलरी रेट, ईपीएफ डिटेल्स, टैक्स डिडक्टेड, इन्वेस्टमेंट्स मेड, सेक्शन 80 जो आपने 31 जनवरी तक उनको, जैसे मैंने डेट आपको बताई थी, जो आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ बताए हैं, उसके हिसाब से वो आपका टैक्स कैलकुलेट करके कर देते। अगर वो एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो तो बेस्ट है, और अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो सिर्फ अपना फॉर्म 16 अपलोड कीजिए, आपकी रिटर्न फाइल है। आईटीआर 1 2 3 4 बताता हूँ आपको मैं, सिर्फ अपलोड कीजिए 16 नंबर फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न आपकी फाइल होगी। अगर उस पर सब कुछ एक्यूरेट है, यूजुअली नहीं होता है, वो लोग इन्वेस्टमेंट सारी एंटर नहीं करते हैं, एंड वी नीड टू ऐड आवर इंटरेस्ट इनकम्स आल्सो। सेविंग बैंक की इनकम डालनी ही डालनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इफ वी डोंट डू दैट देन वी आर हाइडिंग आवर इनकम। तो 16 में टैक्स डिडक्टेड सैलरी वालों का, टैक्स बेनिफिट जो उनको मिले हैं, सेक्शन डिडक्शन जो आपने क्लेम दिया है, और आपकी फाइनल टैक्सेबल इनकम क्या है। तो 16A जो है ये बैंक वाले देते हैं आपको, बेसिकली जितना उन्होंने टीडीएस काटा होता है, इट इज मच सिमिलर टू 16, बट दिस इज गिवन बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 15H के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टीडीएस बैंक ना काटे तो उसके लिए आपको 15G देना पड़ता है। जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन सिस्टम बैंक यूज करते हैं। अगर आप पहला क्वार्टर मिस कर गए, जैसे 30 जून से पहले आपने नहीं दिया और बैंक ने आपका इंटरेस्ट काट लिया, क्योंकि क्वार्टर नहीं कटता ब्याज, तो आप 30 जून के बाद दे दीजिए ताकि आप 30 सितंबर को आपका ना काटें। आज रात को आप सारे बहुत अमीर हो जाएंगे। पूछो क्यों? आज आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको सब पता जितने आपके अकाउंट है हर क्वार्टर में डलता है। शायद कल सुबह मैसेज आएगा। तो 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो कुछ मोस्ट ऑफ द बैंक्स में हम ऑनलाइन भी हम लोग सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप भूल गए देना टाइमली तो एक क्वार्टर का आप अगले क्वार्टर में कर दीजिए, ताकि जो कट गया है वो तो आप रिफंड ले सकते हैं, अगले क्वार्टर में बैंक में। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो हम लोग खुद करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम पे बहुत भरोसा करता है। वो कहता है आप खुद अपनी इनकम बनाओ, खुद असेस करो और खुद ईमानदारी से टैक्स भरो। करते हैं हम लोग? नहीं करते ना। सो दिस इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स व्हिच वी पे बिफोर 31st of July. This has to be paid first. ये 22, 23, 24, 25 तक दे दो, जुलाई तक। रिटर्न उसके बाद फाइल करो। क्यों? इसकी एंट्री आएगी वहां पे 26AS में, कभी आप फाइल कर सकते हो ना। सो अब आईटीआर कौन सी किसने फाइल करनी है? सैलरी वाले यूजुअली फाइल करते हैं, लेस देन 50 लाख इनकम वाले आईटीआर 1। उससे ज्यादा है प्लस उनके थोड़े म्यूचुअल फंड के गेन्स हैं तो वो आईटीआर 2 फाइल करें। आईटीआर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, 30-35 पेज की रिटर्न है। आईटीआर 1 इज वेरी सिंपल, 2-3-4 पेज की रिटर्न है। आईटीआर 3 अगेन लाइक आईटीआर 2 इज बेसिकली स्लाइटली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, अगेन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी 30-35 पेज का फॉर्म है। हम लोग आजकल यूज करते हैं आईटीआर 4। व्हाई? दिस इज इजी एंड सिंपल। ये 2 साल से स्टार्ट हुआ है, फिर पिछले फाइनेंशियल से ज्यादा एक्टिव हो गया। इस साल बहुत सारे लोगों ने 44 ADA में भरी है, इंक्लूडिंग मी। 44 ADA क्या है आपको बताता हूँ अभी आने की स्लाइड में। ये आईटीआर 5 फर्म्स के लिए या कंपनीज के लिए आईटीआर 6। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइल द करेक्ट आईटीआर फॉर्म। अगर करेक्ट आईटीआर नहीं भर रहे तो आपने भरनी नहीं, सीए ने भरनी है, दे नो इट। बट उससे अगर आप डिटेल्स अपनी कुछ छुपाएंगे तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो टू सेव यू। अगर कोई इंक्वायरी आई, इंक्वायरी हर एक में आती है, एमएलए में भी आती है, इसमें भी आ जाती है। तो अब गेम चेंजर क्या है हम सब लोगों के लिए, जिसने थोड़ी सी लाइफ इजी कर दी। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपने एक्सपेंसेस के बारे में पूछा था, हम लोग करते थे इनकम डालते थे, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते थे। एक्सपेंसेस में जो मशीन खरीदी थी उसकी डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंसेस में ऐड करते थे। फुल एक्सपेंडिचर नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन करके फिर जो बनता था उसके ऊपर हम लोग इनकम बना के, और उस इनकम में हम पहले अपनी वो दूसरी एक्स्ट्रा सोर्सेज भी ऐड करते थे, रेंटल ऐड करते थे। देन वी यूज्ड टू मेंटेन दैट। उसमें बुक्स मेंटेन करनी, रजिस्टर मेंटेन करने जरूरी है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है। अब द गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर ऑल प्रोफेशनल्स, thus almost eliminating the need for all of us for a CA.
हम लोगों को सीए की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस। सर ने अपनी बैलेंस शीट खुद बनाई, मैं तो 5 साल से बना रहा हूँ अपनी खुद और अपने रिटर्न को खुद फाइल करता हूँ। इस बार मेरे फादर ठीक नहीं थे तो उनकी भी मैंने फाइल करी। और सबसे बड़ी बात है, शायद आप लोगों को हैरानी होगी, उनके रिकॉर्ड में मैंने आज तक कभी गलती नहीं निकाली, मतलब निकलती नहीं, इतने परफेक्ट है वो कैलकुलेशन के मामले में। ऑफ कोर्स इतने साल का एक्सपीरियंस है। इस साल उन्होंने अपनी रिटर्न जो बनाई, उनका टैक्स कटा हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था क्योंकि उनके एरिया आए थे बनाने, तो बैंक ने काट लिया। बैंक वाले भी देखो वहाँ ना एक बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉय का 20% टैक्स काट के बोलते हैं कि आपका पैन नंबर ही नहीं है। बैंक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसको बोलते हैं आपका पैन नंबर नहीं है हमारे पास। एफिशिएंट है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। चलो खैर, उन्होंने 20% तो चलो जैसे भी था उनके 26 ईयर्स में हमने किसी तरीके एंटर करवा लिया। मैंने 20% वाला तो आता ही नहीं, करवा लिया बैंक से सर्टिफिकेट लेके सीए से। तो उन्होंने जो अपना बनाया टैक्स रिफंड 34,000 समथिंग बनाया कि मेरा इतना है। आई कैलकुलेटर मैंने, चलो मैंने उनका कागज नहीं देखा, मैंने अपना कैलकुलेट किया, मैंने उनका बनाया टोटल 37 समथिंग। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपकी कैलकुलेशन वैसे तो आज तक गलत नहीं हुई है, और ये मेरा जो बनाया आपने रफ सा वो आइडिया लेके बना लेते हैं, बाकी उसके बाद फाइनल में बनाता हूँ। मैंने कहा आपका जो बनाया आपने गलत बनाया। तू मेरे में गलती निकाल रहा है क्योंकि आज तक तो कभी निकली नहीं इतने साल में। व्हेन ही क्रॉस चेक उनको वाकई में जेन्युइनली 37 हो, कहते शाबाश अब तो सीख गया। तो these are small little things, we can all do it ourselves। थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत, बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दी है। अब दिस इज नोन एज प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। अब ये स्टार्ट तो 16-17 से हो गया, लेकिन बहुत लोगों ने 17-18 से स्टार्ट किया। तो बेसिकली एक 4480 सेक्शन था ट्रेडर्स की, उसमें वो लोग क्या करते थे कि आपकी जितनी रिटर्न है उसके ऊपर आप 8% टैक्स देते, तो आपकी रिटर्न के ऊपर। अगर आप ऑनलाइन भरते हो आपको 6% है टैक्स, उनको 2% का रिबेट था। तो उसी को मॉडिफाई करके सेक्शन को एक नया उसमें किया, तो उसको मॉडिफाई करके उन्होंने एक सेक्शन बनाया 4480, पर उसमें एक क्लॉज था आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। जब भी मैं इनकम की बात करता हूँ, यू हैव टू प्रिज्यूम दैट इट इज एनुअल इन फाइनेंशियल मैटर्स, इट इज नॉट पर मंथ। सो व्हाट डज दैट बॉयल डाउन टू? 4,16,666 पर मंथ। तो आप 4.25 लाख से कम, 4,16,000 से कम आपको सैलरी है, तो यू फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ 4480। Even after that you fall under the ambit of 4480 बट उसके लिए फिर आपको ऑडिट कंपलसरी होगा। ऑडिट एक सीए है। अब इसमें आपको सब कुछ बेनिफिट मिलता है। इसका सिंपल सा सिस्टम है, जो आपने कमाया सरकार ने उसका आपको 50% आपका एक्सपेंस ले लिया। इट इज 50% ऑफ योर ऑल बिल्स, ऑल डेप्रिसिएशन, ऑल सैलरीज आर एक्सपेंसेस। एग्रीड? उससे क्या हो, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, बाकी सब वही रहे, और बाकी जो 50% बचा उसके ऊपर आपने टैक्स दिया। मान लो महीने का आपने कमाया 1.5 लाख, साल का हो गया 18 लाख, ठीक है। आपकी सैलरी, आपका एक्सपेंस गवर्नमेंट ने बिना आपके बिल देखे मान लिया 9 लाख। आपने 9 लाख की इनकम है, उसमें इंटरेस्ट इनकम ऐड करो, और कोई रेंटल इनकम है वो ऐड करो, कोई और कुछ भी है वो ऐड करो, फिर उसमें आप लगाओ डिडक्शन। वो आपको भी बताऊंगा, डिडक्शंस लगाओ, जो फिगर निकलती है माइनस करके। हम लोग सोचते हैं सिर्फ हमारे को 1.5 लाख मिलता है, वो भी बताऊंगा कितना मिलता है। हम लोग क्रिप करते हैं, सरकार पता नहीं क्या कुछ ले जाती है। सरकार ने बहुत कुछ किया, सब कुछ हमारे पे छोड़ा हुआ है, हम फिर भी रोकते हैं। तो क्यों है? उसमें सबसे बड़ी, उसके बाद जो फिगर निकलेगी दैट इज योर नेट टैक्सेबल इनकम। अब इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज, कोई बुक्स नहीं मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरत नहीं, कोई बिल संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। इसके लिए हमारे को सीए की जरूरत पड़ती थी। वो डीलर से लड़ाई करते तो बिल देता नहीं है, बिल वो कहूँगा मैं जीएसटी लगाऊंगा, बिल रहने दे, थोड़ा वैसे अंडर बिलिंग करके दे दे, और वो सब लोचे खत्म, वो सब टेंशन खत्म। एक भी बिल ना हो आपके पास, बिल गिना जाएगा। उसमें सिर्फ आपको रखना क्या है, प्रूफ ऑफ इनकम, इनपुट का सोर्स रखना, दिखाना जरूरी है।
फिर क्या आ गया जरूरी, सुबह हमने डिस्कस किया था मेडिकल रिकॉर्ड। अब मैं सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट क्यों, सॉफ्टवेयर में लोग बहुत कुछ आपको मार्केट करके जाते हैं, आपके देखो आपको पेशेंट आएगा, आपका पेंडिंग अमाउंट आपको फ्लैश करना शुरू कर देगा, आप सही इनकम डालोगे तो फ्लैश करेगा, सारी इनकम डालते नहीं तो डेंटल सॉफ्टवेयर लेके क्या करोगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करोगे, वो बेटर है आपके लिए अगर आपने मॉडिफाई करना। सो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा। अब ये फॉर्म 3C मैं सुबह से बहुत बार बोल चुका हूँ, ये है फॉर्म 3C, इसका रजिस्टर डी भी आता है, अगर मैनुअल में जाते हैं हम लोग ई फॉर्म में, इसको आप नॉर्मल एक्सेल फाइल में बना सकते हैं, यू कैन यूज इट। दिस इज फॉर द पेमेंट रिकॉर्ड। इसको मॉडिफाई करके आप थोड़ा सा इसके अंदर ही कॉलम ऐड कर लीजिए या एक और कॉलम ऐड कर लीजिए, इसमें आप ऐड कर लीजिए जैसे मैंने सुबह बताया, ट्रीटमेंट सजेस्टेड, ट्रीटमेंट ऑप्टेड, ट्रीटमेंट डन। उसी में आप अपना मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं, साथ के साथ एलर्जीज टू द पेशेंट भी मेंशन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको जो हमारे पंजाब में शुरू हो गया, आने वाले टाइम में आपको एंटीबायोटिक का रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। आपके मैं नहीं जानता पर हमारे 329 एंटीबायोटिक की लिस्ट आ गई है which are not to be prescribed। उसमें ओफ्लॉक्स और रीडाजोल भी है, उसमें सेफिक्सिम भी है, डेंटल में यूज होती सारी ड्रग्स हैं। मेरा केमिस्ट बहुत उठता है, कहता है मैं कौन सी ड्रग मेरे को रजिस्टर के कहा, उसको अलग से रखना है। ट्रामाडोल तो हमारे बंद ही हो गई, आई कांट प्रिस्क्राइब ट्रामाडोल क्योंकि केमिस्ट ने रखनी नहीं, कोई एक बात ट्रामाडोल रख नहीं सकता। डिस्पेंस करने के वक्त मेरे को उसका रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर अलग लगाना है, वो काट के मैं पेशेंट को चलो दे सकता हूँ इमरजेंसी पेन के लिए, बट इट हैज ऑल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड विद लॉ रेगुलेशंस। सो दिस इज फॉर्म 3C फॉर, दिस इज मैंडेटरी फॉर 44A। सिमिलर थिंग, नॉट एग्जैक्टली दिस बट अ सिमिलर थिंग टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इनपुट, जहां पे आपको इनकम आ रही है उसका रिकॉर्ड चाहिए। सो अब ऑडिट दो सिचुएशन में जैसे मैंने बताया, 50 लाख से ऊपर या 2.5 लाख से कम, दोनों केस में ऑडिट चाहिए। अगर आप 2.5 से 50 के रेंज में तो नहीं। हाँ जी मैम, बहुत ड्रग्स पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बंद हो गई, बहुत सारी हो गई है। नहीं, डाइक्लोफिनेक तो अभी हमारे को आया नहीं है, बट डाइक्लोफिनेक सोडियम का वैसे आ गया था, सिरेशो के साथ वो वैसे ही हमारे बंद हुए। हम एसिक्लोफिनेक देते हैं 3-4 साल से, डाइक्लोफिनेक देते नहीं, बहुत सालों से बंद कर दिया। So one question, sure. So as a dentist, what kind of account should we have, current or saving? दोनों चाहिए। किस लिए चाहिए? So स्वाइप मशीन, स्वाइप मशीन के लिए वो वैसे ही आपको एक्सिस को छोड़ के बाकी सारे बैंक आपका करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो सेविंग खोलेंगे, एक्सिस वाले खोल देते हैं। अब उन्होंने भी चेंज कर दिया, पता नहीं मेरे पास एक्सिस मशीन चेंज कर दिया होगा। पहले उन्होंने सेविंग का उनका खुल जाता है, अब उन्होंने सबके साथ कर दिया। अब ये 44AD जैसे मैंने बताया, कहाँ से जन्म हुआ है इसका, 44AD से। वो बिजनेसमैन के लिए था कि जिनकी 2 करोड़ तक टर्नओवर है, 8% टैक्स दो जितनी ग्रॉस सेल है, एंड उनको ये था कि अगर आप ऑनलाइन देते हो, डिजिटल रिसीव करते हो तो आपको 2% रिबेट है, 6% टैक्स है। हम चाहे ऑनलाइन दें या वो दें, हमें 50% ही मिलेगा, हमारे भी डिजिटल पे कोई रिबेट नहीं। वैसे भी हमने डिजिटल करनी है, हमारे को तो मैनुअल ऑप्शन भी नहीं। सो अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ 44ADA की कि कैसे बेनिफिट हो सकता है आपको। जैसे एक डेंटिस्ट की एग्जांपल है, एंडोडोंटिस्ट है, कंसल्टेंट है, उनकी इनकम उस साल में 18 लाख की है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से, तो उसको नॉर्मल में कितना टैक्स देना और 44AD से कितना देना, उसका मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेकअप किया है। मान लीजिए उसके 18 लाख इनकम है, उसके एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है कन्वेंशनल सिस्टम में जो पहले फॉलो होता था 6 लाख है, उसके ट्रैवल ये वो मिसलेनियस बिल सारे मिला के टोटल ये सारे उसके बिल्स हैं 6 लाख के, उसकी नेट टैक्सेबल इनकम बनी 12 लाख। अब उसको एडीए के हिसाब से उसकी इनकम बनी 9 लाख, स्लैब ही कम हो गई उसकी, वो वैसे 20% में आ गई, उससे 30% में थी। ठीक है, अब टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। अगर मान के चलिए कि उसकी इंटरेस्ट इनकम नहीं है, मैंने एडिशनल इनकम इनटू कंसीडरेशन नहीं ली है, जस्ट टू सिंपलीफाई, तो उसकी कितनी इनकम बनेगी, इतना प्रोग्रेसिव है 12,500, 5 से 10 में 1 लाख, उसके बाद उसकी टोटल 12 लाख थी तो उसके ऊपर 60,000,
उसकी टोटल इनकम बनी 1,72,500 विद द कन्वेंशनल सिस्टम। यही, और इसमें उसको रिकॉर्ड्स भी रखने हैं, सीए की सेवा भी लेनी है, सीए को अलग से पेमेंट देनी है, तो सीए के साथ चक्कर भी मार रहे हैं सीए के पास जाके, वो आप सोचो कितनी हेडेक कम हुई है इस चीज से। अब इसी को प्रिजम्पटिव में देखो, उसकी टोटल लायबिलिटी बनेगी 92,000, 80,000 का उसका टैक्स बचा, रिकॉर्ड से छुट्टी, खुद कर सकती है फाइल, और सीए ना भी करे तो भी चले। एडवांस टैक्स तो सर 10,000 से ऊपर क्या बन गया है? मैं तो बोला आपको, वो तो 4.5 लाख से ऊपर इनकम भी तो आपका 4.5 लाख भी है, तब भी आपका एडवांस टैक्स बनेगा। 4.5 लाख सिर्फ प्रोफेशनल से, इंटरेस्ट तो काउंट ही नहीं कर रहा। जब आपने एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना, यू हैव टू ऐड प्रिज्यूमेबली ऑल फिगर्स, ऑल इनकम, पिछले साल का बेंचमार्क रखना है। There is one more benefit. जी Advance tax. 4480 में. हाँ, वो हम सर 4480 में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एडवांस टैक्स का, अभी अगले वाली स्लाइड में कवर करते हैं कि भी, चलो पहले इसमें कि उसको 80,000 कम से टैक्स दें। सो उसमें 4480 में है, you can pay all installments in one go of 100% by 15th March। ये आपको 15, 45, 75 वाली पे करने की जरूरत नहीं है। ये पिछले साल से क्लियर नहीं था, लेकिन इस साल क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट का है, पिछले साल मैंने भी 4 दी इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट मेरी 15 मार्च को थोड़ा सा अमाउंट कम जमा करवाया, 16 मार्च को कराया, उसके ऊपर उन्होंने 500 रुपये ब्याज लगा दिया। जो मैंने पिछले एक्स्ट्रा दिए थे 9 महीने, उस पर 1 रुपया नहीं दिए। दिस इज द डिफरेंस। वो ब्याज दिए थे, असल जरूर वापस कर दिए। मेरे साथ हुआ 234 है। तो इनकम सोर्सेज जैसे हमने डिस्कस किए सुबह, अभी थोड़ी देर पहले, सैलरी, पेंशन, केबीसी, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, अब डिडक्शंस पे आते हैं। डिडक्शन सरकार क्या क्या देती है? सरकार कहती है आप इन्वेस्ट करो, हम आपको इनकम में छूट देंगे, जो आप जिस इनकम पे आपने टैक्स दे। अब 1.5 लाख तक तो सीधा हमारा एग्जाम्प्ट है 80C। 80C में क्या क्या कवर है आपको चार्ट दिखाता हूं मैं। ईपीएफ में डाल सकते हैं, जो ईपीएफ है, जो सारे लेवल का ईपीएफ कटता है, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस की माफ होती है इसमें कुछ एक्सटेंट तक। ट्यूशन फीस, टोटल फीस नहीं, कई ट्यूशन फीस पीनट्स होती है, पूरा ब्रेकअप देखो ना, ट्यूशन सिर्फ ट्यूशन फी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड की पूरी मिल गई रेट। ठीक है, सुकन्या समृद्धि, यूलिप्स, ईएसएस, तो ये सारे जो है, प्लस ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाले, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वन। इनमें से कुछ भी या टोटल मिला के आपने 1.5 लाख पूरा करना है इनमें इन्वेस्टमेंट, और से गवर्नमेंट को पैसा देना है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास रखना है, और आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी आपकी इनकम। उसके अलावा डिडक्शन मिलती है हमारे को 80cc में, 80ccd1 है, ये एडिशनल सेक्शन है एनपीएस का। एनपीएस के बारे में जानते हैं? नेशनल। तो ये एनपीएस के कारण आपको एडिशनल एसीसीडी 1B के अंडर 50% तक मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता है इसमें, और इसमें सैलरी को भी मिलता है। तो रेंट के लिए आप दे सकते हैं, तो दैट इज अ मैटर ऑफ सम अदर डे। 80TTA सेविंग्स अकाउंट है, जितना आपका सेविंग्स इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको 10,000 तक मिलता है। सो एजुकेशन लोन के ऊपर है, फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए है। 80CCD तो बंद हो गया, राजीव गांधी FDC में बंद हो चुकी है। तो मेडिकल इंश्योरेंस में आपको अपना फैमिली का 25,000 अगर पेरेंट्स के लिए करते हैं, सीनियर सिटीजन जो आप पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन देयर पेंशन, उनका 30,000 एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको। तो देयर आर मेनी सेक्शंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू अस, एंड दीज ऑल ग्रांट यू बेसिकली सम अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पेइंग टैक्स। पर सारे सेक्शन हर बंदा यूज नहीं कर सकता है, ना यूजेबल होते हैं, ना यूज भगवान करे तो ये डिसेबिलिटी वाला सेक्शन ना यूज करना में अच्छी बात है। तो ये वाला तो यूज बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज की कंट्रीब्यूशन, इनको तो बिल्कुल मत दो। तो हालांकि दिस इज ऑल एग्जम्प्टेड, और इसमें जितनी मर्जी लिमिट तक ले लो आप एग्जम्पशन, उनको दान दो। तो प्रेडोमिनेटली हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, पीपीएफ करते लोग, एनएससी, एनपीएस, टैक्स सेवर एफडीज, पोस्ट सेविंग, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो आरजीएसएस तो बंद हो गया, यूलिप्स हैं, सुकन्या समृद्धि, दीज आर मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट्स। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और भी बहुत सारी चलती है, किसान विकास पत्र, और या बैंकिंग लोन्स वगैरह के कारण LIC, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80C। अब
कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, नॉट टाइम टू डिस्कस दैट, बट चलो बेसिक आपको बता दूं। हम लोग उनको कंपैरिजन अगर करें तो उनका रिस्क प्रोफाइल है किसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किसमें इंटरेस्ट रेट कम है। अब ये इंटरेस्ट रेट फिर रिवाइज हो चुके हैं, पुराना चार्ट है, तो ये हैव बीन रिवाइज नाउ फ्रॉम द कमिंग क्वार्टर। ये हर क्वार्टर में रिवाइज होते हैं, 4 पैसे बढ़ गया 3 पैसे, तो दीज आर ऑल कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ये वो कहते हैं सैलरी क्रिप करते हैं कि हमारे को तो सिर्फ 1.5 लाख की छूट है। अब देखो क्या क्या छूट है, मैं बता रहा हूँ। 1.5 लाख मिल गया सेक्शन 80C में, सेविंग बैंक में 10,000 मिला, इस साल से हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट क्या हुआ, लोग कहते हैं सिर्फ 5800 का बेनिफिट हुआ, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट और मेडिकल का 15,000 और 19,200 मिलता था, रिवर्सल फ्रॉम द देयर एम्प्लॉइज। क्या बना 34,200। तो कहते 40 मिल के हमारे को तो 5800 का या 6,000 का बेनिफिट हुआ रफली। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलेगी। हर एम्प्लॉय को 15 और 19 नहीं मिलता था, और 40 हर एम्प्लॉय को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता था, वो ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती थी गवर्नमेंट से, तो ये उनको मिलेगा। फिर अपना मेडिकल इंश्योरेंस 80D के अंदर 25,000। चलो पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं होते, ज़्यादा पेंशन लगी होती है यूटी, तो 30,000 तो उसका, इसको चलो इग्नोर कर दो, तो 50,000 NPS। अब पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट की इनकम आपकी सिंगल अकाउंट है तो 3500 वो एग्जाम्प्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम 3500 का। जॉइंट अकाउंट कर लो मदर के साथ या फादर के साथ, तो आपको 7,000 तक एग्जम्पशन है, तो 2,82,000 की एग्जम्पशन मिलती है आपको, कम नहीं होती। हमारा सीए बताता है 1.5 लाख ही है बस, 2,82,000 एग्जैक्टली अगर आप यूज करो। यूज करने की बात, ये जो पोस्ट ऑफिस वाला मिलेगी फर्स्ट होल्डर को, चाहे ज्वाइंट वाला 7,000 वाला मिलेगी फर्स्ट को, सेकंड को नहीं मिलेगी। वेरी क्लियर है, मैं अवेल करता हूँ 7,000 वाली, मैं खुद करता हूँ अवेल। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी डोंट इवन नो। अगर आप इसके अंदर घुसोगे, थोड़ा सा हर लाइन के अंदर घुसोगे, बहुत दूर दूर दिखते हैं। बैंकिंग सिस्टम में बहुत दूर दूर है, यू हैव टू जस्ट प्लग दोस लूप होल्स एंड गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है, एक चलो ये ऑप्शन था, एक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2,42,000 है, ये 40 माइनस कर दो, 2,40,000 42,000 है, दैट इज नॉट अ लेस अमाउंट। अब ये एक बड़ी हैरानी देने वाली बात, 70% लोग इंडिया में 80C नहीं अवेल करते। 80C क्या होता है, 1.5 लाख। 70% लोग, इमेजिन इतनी लिस्ट है लंबी चौड़ी, चिल्ड्रन फीस, LIC, सुकन्या समृद्धि, वो लोग नहीं करते। उसमें से बहुत सारे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स। क्यों, गरीब बंदे ने टैक्स भी भरना है, एग्रीकल्चर इनकम वैसे टैक्स फ्री है, सुपर रिच से वो वैसे ले लेते हैं, बच्चे तो मिडिल क्लास है ना हमारे जैसे, तो ये मिडिल क्लास तो खुद ही नहीं करते राजी अपना फायदा, वो 1.5 लाख तक नहीं करते, फिर कहते सरकार टैक्स बहुत दे रही है। और फिर वो भी जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमने करनी मार्च में। पीपीएफ का बेनिफिट क्या मिला हमें, ब्याज तो मिला नहीं, डालो 5 अप्रैल से पहले पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी सर, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अलग अलग हेड्स पे भी मिल सकता है क्या जी सर? आप पिछले वाले स्लाइड सो अगर 1.5 मैंने पीपीएफ में डाला है, एनपीएस में मैं अनदर 50,000 डाला। यस यस यस, एनपीएस इज ओवर एंड अबव, तभी मैंने अलग से लिखा है। अच्छा, दैट वाज जस्ट क्लैरिफाइंग। सेकंड इज आपने बोला फर्स्ट अकाउंट होल्डर को वो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, अगर जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट है तो 7,000 तक रिबेट मिलेगा ऑन इंटरेस्ट। वहां पे 4% है सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% सेविंग अकाउंट पे पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लाइक अ बैंक सेविंग्स अकाउंट। थोड़े से पैसे बैंक से निकाल के वहां रख दो। और बैंक में जो जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, बैंक में फर्स्ट होल्डर की लाइन, वो एफडी के बैंक में रूल बड़ा क्लियर है, चाहे 4 होल्डर हो अकाउंट के, 4 तक अलाउड होते हैं, तो यूजुअली लोग 2 रखते हैं, सिंगल रखते हैं। बैंक के रूल के हिसाब से वन थिंग, मनी बिलोंग्स टू द फर्स्ट होल्डर, लायबिलिटीज ऑफ फर्स्ट होल्डर। स्टैंडिंग रूल एज पर इनकम टैक्स। वैसे आपने बैंक में मैंडेट दिया हुआ है आइदर सर्वाइवर और एनीवन और सर्वाइवर, मल्टीपल में 2 में चलता है आइदर सर्वाइवर, मल्टीपल में ए और एस चलता है, एनीवन और सर्वाइवर, 3 या 4 में वो ऑपरेटेबिलिटी की अलग रूल है। मैं आपको जो बता रहा हूँ फर्स्ट होल्डर वाला, वो इनकम टैक्स है। ये you cannot, first holder cannot say I don't want to claim it, my second holder। वो क्लेम करना ही पड़ेगा, उसका बेटर है उसको बंद करा के नया खुलवाओ, उसमें ऑर्डर चेंज कर दो। Many banks are now
यस बैंक का तो पता है मेरे को, प्राइमरी होल्डर चेंज करना अलाउड नहीं होता बैंक। सेकंड थर्ड को डिलीट प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस कर लो, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो इन एनी बैंक। यस बैंक में शुरू हो गया पिछले 1 साल से, इवन यू कैन चेंज द प्राइमरी। What if the primary holder want to withdraw the name? ऐसा भी हो सकता है? नहीं, सर्वाइविंग की बात कर रहा हूँ, अलाइव की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डिसीज्ड। डिजीज नहीं, मैं भी सर्वाइवल का बोल रहा हूँ कि सपोज मेरा कोई फैमिली मेंबर है, that person was the first holder. Now can it happen that the first holder removes the name and I'll be the only, or I'll add someone else? वो यस बैंक में स्टार्ट हो गया, और किसी बैंक में हुआ कि आई एम नॉट श्योर। मैं अब बैंकिंग अपनी कंसोलिडेट कर ली, अभी मल्टीपल दी सबकी, अब सबकी एक जगह बैंकिंग कर दी। आई एम अवेलिंग मोर इंटरेस्ट। मैंने 4% वाले ऑलमोस्ट सारे अकाउंट बंद कर दिए स्टेट बैंक को छोड़ के, वहाँ मजबूरी बातों के कारण, नहीं तो मैं वहाँ भी ना रखता। चलो स्टेट बैंक में फिर भी जरूरी होता है, बिकॉज बहुत सारे चालान, बहुत सारा वो इजी पेमेंट होती थ्रू SBI। कोई किसी ने एग्जाम देना, कोई बच्चों का एग्जाम देना, वहाँ से चालान इजीली बन जाते हैं। वो स्टेट बैंक की पेमेंट हर बार एक्सेप्टेबल होती है। But state bank is the nationalized bank, right? So other nationalized bank might also have the same facilities what you're talking about. नेशनलाइज बैंक किसी में भी 3.5-4% से ज्यादा नहीं है सेविंग में इंटरेस्ट। प्राइवेट दे रहे हैं, प्राइवेट में आपका जो RBL है 6.5% दे रहा है, यस बैंक 6% दे रहा है, कोटक बैंक 6% दे रहा है, AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 6% दे रहा है, और बंधन बैंक 6% दे रहा है। बल्कि AU फाइनेंशियल तो 10 से ऊपर आपको 5.7 दे रहा है सेविंग में। अब तो इंटरेस्टेड FD के रिवाइज हो गए, साल पीछे जाओ या 8 महीने पीछे जाओ, इसी साल में जनवरी फरवरी में FDs के रेट 6.25 पे आ गए, 6.25, 6.40, उससे ज़्यादा सेविंग मिल रहा है। तो व्हाई इसका ऊपर से नेशनलाइज्ड बैंकिंग में वर्स्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस है, प्राइवेट बैंक में यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। इंटरेस्ट देखो, बात ये आपने ये इंटरेस्ट तो देना ही देना है, ज्यादा कमा के दो ना। आप गवर्नमेंट को तो दे रहे हो, मिलेगा तो फिर भी ज्यादा। 4% पे 4 तो बचेगी, तो 3.5 ही बचा है। 3.5 पे इंटरेस्ट दे रहे हो, 6 पे दे रहे हो, ठीक है, प्रोपोर्शनली गवर्नमेंट को ज्यादा जाएगा, पर आपको भी तो ज्यादा आएगा। वो एक फिंगर 3 फिंगर याद रखो ना। So हर जगह अप्लाई होती it will cover the tax with investments also. Like there are some tax saving investments. है। वो है, but that is again a full day 2-day topic. I'm planning to come up with a dense start. I'll put up the details in the course. We're planning to come up with a year-long course, 2 days every alternate months, full sessions of 2 days on the topics chosen by the participants. We are planning a dense start. अभी शायद टाइम शॉर्ट बचे क्वेरीज के लिए, तो I'll be putting up. They'll be adding in the group in which you all registered delegates are there. You can put up your queries into me. We'll keep that group active for some time. I'll put up the brochure of that. जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, कल ही हमने सोचा थोड़ा सा एक ईयर लॉन्ग कोर्स करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड होगा, 2 days every alternate months on all topics separate, जो भी इंटरेस्टेड होगा बजट फाइनेंस का भी होगा, जिसका भी होगा। So do not say what is left after spending, but spend what is left after saving. वॉरेन बफेट ने बहुत सोच के कुछ बोला, so save mindlessly, spend consciously. हम लोग उल्टा करते हैं। Thank you so much. One thing I always request you, अच्छा फाइनेंस के भी मेरे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं आइडिया पंजाब में, आइडिया टाइम में नहीं, आइडिया पंजाब में है, आइडिया पंजाब में है वेबसाइट पे। उनके ये 3rd और 5th पार्ट आने वाला है, ऑलरेडी सेंड इट, वो आ जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन पार्ट 3 और 4 जिसमें है वो इश्यूज ऑनलाइन थे, उन्होंने अभी हटाए हुए हैं, विद इन अ वीक वो ऑनलाइन दोबारा आ जाए। But in the past 2 issues, part 1 and 2 are there, part 3 and 4 are also there online. So again, like I told in the morning, you are free to join my groups if you want to. And thank you once again. I'll request you a feedback. It will be very appreciated. Any queries? Most welcome. Hello. More than 3 lakhs.